Okay, Assalamu alaikum. Welcome to the 10th lecture of data mining. So we have completed, after this lecture, of course, we will have completed 5 weeks of this semester. Uh, so we are approaching the mid of the semester, and we still have a long way to go in terms of number of techniques to cover. So today, we will continue our discussion on frequent item set mining. Last time we had talked about the a priori algorithm, which is a scalable algorithm for frequent item set mining. And we also discussed some of the extensions in the a priori framework. So today we will go to a different algorithm, which does uses some of the ideas of the a priori algorithm, but it also adds significant new ideas uh, to the task of finding frequent item sets in transactional databases. So today I see a very few people attending the lecture. So I hope all of you are following the lectures closely. I also post them on YouTube. So if you do have any questions, please ask. You can ask during the lecture as well as you have office hours when you can ask those questions. So before I get started, are there any questions? Okay. So today we will start discussing another main algorithm for frequent item set mining, which is called the frequent pattern growth algo. For short, is called the FP growth algo. So this algorithm uses a number of new ideas to further improve the performance of frequent item set mining from transactional databases. So one of the challenges in the a priori framework was the candidate generation and test. Both of them were quite tedious, quite time consuming. The generation step was also tedious in the sense that oftentimes you get a very large set of candidate items. And then the second step was counting them and of course checking for whether a particular item set can be pruned or not. So this process was tedious. And later on, we did see that if you partition the database, you did gain some performance improvement. Of course, you can also run them in a distributed fashion. So the FP growth algorithm does partitioning on the fly, but it does partitioning on the basis of frequency of items. That is a new idea that it introduces. The second thing is basically I'll write this down as well, and then we'll go over the algorithm itself. The second thing is uses a specific data structure for compressing the information in a transactional database for frequent pattern mining. So information that is redundant or you can say repeated is not stored in multiple places. It's stored in a more efficient data structure, which we'll say is it's kind of a tree-like structure. Okay? So, what are some of the characteristics? Let me list down the characteristics. So one is basically, so uses a data structure, which it calls a frequent pattern tree for uh, storing pattern
info. ठीक है. The second thing that it does is follows the principle of pattern growth. So in the a priori framework there was pattern growth, but the pattern growth was not based on frequency, it was based on lexicographic order. Here pattern growth is based on frequency. ठीक है. And we will see how this works. And this is also a reason for the compression, because an item that occurs multiple times is usually saved at a fewer number of places rather than saved at multiple places. ठीक है. And another characteristic of this algorithm is called depth first. This is a terminology from algorithms, and this is as opposed to a priori. A priori is considered breadth first. So let me explain what this means. So in the a priori framework, what did we start with? We started with the one item sets. Okay? So all item sets of size 1. And then after that, we moved to the 2 item sets, which are all item sets of size 2. So in other words, if we talk about a specific level, let's say 2, we enumerate and generate and find all the frequent 2 item sets before moving on to the 3 item sets. ठीक है ना. So breadth पे जा रहे हैं पहले, उस लेवल पे हर item set generate कर रहे हैं. ठीक है. उसके बाद फिर 3 item set आ जाएगा and so on. ठीक है. So this was a priori. But FP growth does this. It grows a pattern until its maximum length. So let's say एक pattern कोई बन रहा है A था, उसके बाद AB किया, उसके बाद ABE किया, उसके बाद ABEG किया, ABEG and H किया. And after that, let's say it cannot grow any further. And then it moves on to the next item, B, B, G, and so on. So that's why this is called depth first. So it generates all items of bigger length starting from one item, then goes to the next item. Okay, so that's why this is called depth first. And of course, this is for the FP growth algorithm. Okay, so let me start with an idea and then we go into the algorithm itself. So it uses the idea of what is known as database projection. Okay. So let me just explain this. So let me write a transactional database. So A, B, C ये पहली transaction है, B, C दूसरी है, and let's say A, C तीसरी है. 3 transactions हैं. ठीक है? So this is a transactional database. So let's say I want to generate the projected database projected on, let's say, the item A. Okay? So what does this mean? This means that this is the partition of the database that contains the transaction A, or that contains this item set. In this case, this is just one item. तो ये क्या होगा? पहली transaction होगी ABC था उसमें, और मेरे पास तीसरी transaction होगा उसमें AC होगी, दूसरी transaction नहीं आएगी. ठीक है? Is this clear? So a projected database is a partition of a database that contains the item set on which we want to project. Only those transactions that contain that particular item set. So let's say मैं projected DB बनाता हूँ for, let's say, A and C for example. इसमें सिर्फ एक ट्रांजैक्शन है, एक ABC आएगी, 2 आएंगी इसमें भी, सॉरी, और एक AC आएगी. ठीक है? एंड लेट्स से मैं प्रोजेक्टेड डेटाबेस बनाता हूँ, लेट्स से A, B और E की.
So this will just be the null database. There are no transactions that contain A, B, E. ठीक है? Is this concept clear? Yes, sir. ठीक है. तो अब going back to so let's say हमको पता चल गया कि ये सिंगल आइटम A फ्रीक्वेंट है और A हमारे पास 2 दफा आ रहा है डेटाबेस में. ऊपर जो डेटाबेस दिया है उसमें 2 दफा आ रहा है. ठीक है ना? A 2 दफा आ रहा है और उसका मैंने प्रोजेक्टेड डेटाबेस बना लिया विच इज गिवन बिलो, जिसमें ABC है और AC है. अब इस प्रोजेक्टेड डेटाबेस में लेट्स से मुझे पता, if I find something else that is frequent, then I can grow this item A with that item. For example, इस डेटाबेस में क्या और चीज फ्रीक्वेंट है? लेट्स से मिनिमम फ्रीक्वेंसी काउंट 2 है. C फ्रीक्वेंट है ना, 2 दफा आ रहा है. ठीक है ना? जी. तो इसका मतलब है कि आई कैन सेफली से कि A और C भी फ्रीक्वेंट है इन द ओरिजिनल डेटाबेस, बिकॉज ये प्रोजेक्टेड डेटाबेस था जिसमें A सारों में आ रहा है. ठीक है, जो आइटम सेट मैंने चूज किया तो वो सारों में आ रहा है और उसके साथ मैंने देखा कि C भी फ्रीक्वेंट है. इसका मतलब है कि फिर AC भी फ्रीक्वेंट होगा. ठीक है ना? सो दिस इज द आइडिया दैट इज यूज्ड इन FP ग्रोथ. इट रिकर्सिवली partitions the database on item sets and then grows the item set using the idea of projected databases. ठीक है? सर एक क्वेश्चन है जी. सर, जब हमने प्रोजेक्टेड डेटाबेस बनाया है ए के लिए, तो उसके अंदर हमारे पास 2 आ गए आइटम सेट ABC और AC. जी. जी. जब हमने देखना है कि कौन सी चीज़ें फ्रीक्वेंट हैं, तो हम अलग से देखते हैं कि इस प्रोजेक्टेड डेटाबेस में A फ्रीक्वेंट है और फिर हम देखते हैं कि C फ्रीक्वेंट है, फिर हम कह देते हैं कि A और C इसके अंदर फ्रीक्वेंट है. जी. जी. इस तरह होता है, यानी हम जी. ये जी. तो नहीं कहते कि अगर हमने प्रोजेक्टेड डेटाबेस A के लिए बनाया तो हम उसको चेक करके बस ये कह दें कि A के लिए फ्रीक्वेंट होगा. नहीं, मैं लेट्स से A फ्रीक्वेंट है और फिर मैंने प्रोजेक्टेड डेटाबेस बनाया. ठीक है? अब उस प्रोजेक्टेड डेटाबेस में लेट्स से A को इग्नोर कर दें आप, विच इज कॉल्ड कंडीशनल पैटर्न बेस. ठीक है? A को जब इग्नोर कर देते हैं, जो डेटाबेस बनता है वो कंडीशनल पैटर्न बेस बनता है बिकॉज कंडीशनड ऑन A. ठीक है? जब A को इग्नोर कर दें तो पहली ट्रांजैक्शन में BC है, दूसरे में C है. अब इसमें देखें फ्रीक्वेंट आइटम सेट्स क्या है. इसमें देखें सिर्फ C है. ठीक है ना? बिल्कुल. सो C occurs twice. सो विच मीन्स दैट के A तो पहले ही फ्रीक्वेंट था इस पूरे डेटाबेस में, तो C भी फ्रीक्वेंट है. इसका मतलब है AC भी फ्रीक्वेंट होगा. ठीक है, यानी हम पहले A के हिसाब से बताते हैं, उसके बाद जी. हम उसे इग्नोर करके बाकी देखते हैं. जी. तो प्रोजेक्टेड सर इसके डेटाबेस. जी, क्वेश्चन. जी सर, इसमें अगर फॉर एग्जांपल प्रोजेक्टेड डेटाबेस हमने A बनाई थी, उसके अंदर हमारे पास एक थर्ड ट्रांजैक्शन होती है, लेट्स से A, लेट अलोन A की थर्ड ट्रांजैक्शन होती है हमारे जी. पास. जी. तो हम जब सेकंड टाइम पे सेकंड फ्रीक्वेंट देख रहे होते हैं C को, तो जी. हम जी. वो A को इग्नोर कर देते हैं और सिर्फ AC और ABC ले लेते हैं जी. जी. सेकंड बिल्कुल. टाइम. जी. पर सेकंड टाइम जो ठीक है ना हम काउंट करेंगे. C उसमें 2 दफा आएगा लेट्स से, बिकॉज A तो 3 दफा आ गया ना. आपने कहा कि जी A जी का सिर्फ ट्रांजैक्शन भी है, C दो दफा आएगा. इसका मतलब है कि जी A और C जो है ना, जो भी मिनिमम वैल्यू होगी उसका काउंट 2 होगा, 3 नहीं होगा. बिल्कुल ठीक. ठीक है ना? जी. तो ये प्रोसीडियर है एंड दिस इज द मेन आइडिया. द सेकंड आइडिया जो था इसका कि ये जो डेटाबेस मैंने अभी ट्रांजैक्शनल डेटाबेस बनाया है, कोई भी ओरिजिनल या प्रोजेक्टेड, मैंने एज रेगुलर रोज में लिखा है. वो ये डेटाबेस एक ट्री में इंसर्ट कर देता है और उस ट्री की वजह से ये डेटाबेस में कंप्रेशन हो जाती है. वो किस तरह होती है? बिकॉज हर एक आइटम सेट को फ्रीक्वेंसी डिसेंडिंग ऑर्डर में वो ट्री के अंदर इनपुट करता है. तो जो आइटम बहुत दफा आ रहा है वो ट्री के ऊपर होगा और मल्टीपल दफा यूज हो जाएगा और आपकी मेमोरी कंजम्पशन थोड़ी रहेगी. So these are the two main ideas that are used in the FP growth. एक, the idea of projected database which is uses recursively to grow item sets. Secondly, it orders frequent item sets in frequency descending order.
such that you can use a tree structure to compress the storage of information. ठीक है, तो ये इसके मेन आइडियाज हैं, and it can achieve significant performance improvement over a priori algorithm over in most practical applications. So let me now, I think एक एग्जाम्पल ले लेता हूँ. वो एग्जाम्पल मैंने अपलोड भी कर दी है या कर दूंगा मैं आपके LMS में. वो एग्जाम्पल आपको दिखाता हूँ. इसमें 2-3 और चीज़ें भी हैं. आई थिंक वो एग्जाम्पल से आपको बेहतर समझ आ जाएगी. सर एक और क्वेश्चन है. जी. सर अगर किसी प्रोजेक्टेड डेटाबेस का साइज 3 है और उसके अंदर हम कहें कि सी फ्रीक्वेंट है, तो वो तभी कहेंगे अगर सी 3 टाइम्स अकर करे उस डेटाबेस में. मतलब हम रिलेटिवली नहीं देख रहे होते हैं. यानी अगर साइज 3 है डेटाबेस का और सी 2 टाइम्स अकर करे तब वो फ्रीक्वेंट नहीं है. सी एज ए सेपरेट आइटम. सी एज अ सेपरेट आइटम. यस. हाँ नहीं, सी एज ए सेपरेट फ्रीक्वेंट होगा, बट जो डेप्थ फर्स्ट रिकर्सिव अप्रोच हम यूज कर रहे हैं ना, वो केटर हो जाएगा. हम हमेशा स्टार्ट करते हैं विद फ्रीक्वेंट सिंगल आइटम, उसका पूरा डेप्थ पे जाते हैं. फिर नेक्स्ट, गो टू द नेक्स्ट, गो टू द नेक्स्ट एंड गो टू द नेक्स्ट. सो इफ यू वी रिकर्स बैक, मे बी एक नेक्स्ट आइटम सेट हम सी से शुरू कर रहे होंगे. ठीक है. ओके. तो ये अभी इस एग्जांपल को देखते हैं, तो आई थिंक यू प्रोबब्ली गेट ए बेटर आइडिया. So this is an example where we have 8 transactions और minimum support threshold मैंने दिया हुआ है 30%. ठीक है. So can you see this slide जो Word का document है? Yes sir. ठीक है ना. तो अब इसमें हर एक, I've shown you the transactions. ठीक है. So these are the transactions items in the first transaction. This is the second है. This is the third, fourth, fifth, sixth and seventh. ठीक है. So first of all, of course, to do this by hand, and of course, we need to compute the count of transactions that make something frequent. तो हम इस percentage को पहले count में convert करेंगे, which is basically the ceiling of 30% of 8, which gives you 3. ठीक है ना. So 3 transactions में कोई item set आ रहा है तो वो फिर frequent होगा. ठीक है. So the first operation in this algorithm is you scan the database once. ये तो same है, a priori में भी पहली दफा scan होता है, and count the frequency of all one item sets. ठीक है. Count the frequency of all one item sets. ठीक है. तो इसमें for example A, B, C, D, E, F ये single items हैं, तो हर एक का हमने count देखना है. But सिर्फ count करने के बाद ना हमने इन काउंट की एक फ्रीक्वेंसी डिसेंडिंग लिस्ट भी बना लेनी है. ठीक है. तो एफ लिस्ट में, विच इज द फ्रीक्वेंसी डिसेंडिंग ऑर्डर लिस्ट, so B occurs 6 times, D occurs 6 times. Of course, both of them are occurring the same number of time. इसमें कोई भी आप arbitrary order fix कर सकते हैं. मैंने B पहले ले लिया, D बाद में ले लिया. ठीक है. A आ गया 5 times, E आया 4 times, C आया 3 times. अब C के अलावा कोई और आइटम होता जो 3 से कम होता, वो तो F लिस्ट में नहीं आना, तो वो यहीं प्रून हो जाता. Any single item that does not have minimum support would be pruned and not put into the F list. तो ये वाला step, by the way, is similar to a priori. The only difference is अब हमने एक ordered list भी बना ली, frequency descending ordered list. ठीक है. तो आप समझें कि ये step a priori वाला है, and then after that we just write the items in frequency descending order. ठीक है. So ये जी question. Okay.
अब इसके बाद जो अब जो स्टेप्स है ना, वो बेसिकली वी विल गो स्टेप बाय स्टेप। यहाँ एक नीचे आपको ट्री स्ट्रक्चर नजर आ रहा है, तो सो नाउ वी आर डन वन स्कैन। अब आप सेकंड स्कैन करते हैं डेटाबेस का। तो सेकंड स्कैन में हमने वही ट्रांजैक्शन, हर एक ट्रांजैक्शन पढ़नी है और उसको फ्रीक्वेंसी, हर एक ट्रांजैक्शन को जो हमने ऑर्डर बनाया है फ्रीक्वेंसी डिसेंडिंग ऑर्डर में, उस ट्रांजैक्शन को उस ऑर्डर में रखना है और एक ट्री के अंदर इंसर्ट कर देना है। द ट्री एक्चुअली स्टार्ट्स फ्रॉम ए नल रूट। ठीक है, तो पहला ट्रांजैक्शन हमारे पास थी सो ई ए बी सी। अब इसमें हमारी फ्रीक्वेंसी डिसेंडिंग ऑर्डर थी, क्या था, बी पहले आएगा, बी आया, डी आया, ए आया और सी आया। ठीक है, सो दिस इज माय फ्रीक्वेंसी डिसेंडिंग ऑर्डर और along the way I insert this into the tree। अब ये ट्री मैंने नीचे जो बनाया वो कंप्लीट है, नजर आ रहा है स्लाइड पे ट्री? ओके, जस्ट गिव मी अ सेकंड। मुझे एक दो कोई बंदे ना, ये जो मैंने ऑर्डर लिस्ट बनाई हुई है राइट साइड पे, वो एक दो मुझे याद कर लें। पहले बी डी ए सी है, दूसरा क्या है? पहले बी डी ए ई है। अच्छा, ए ई है, दूसरा बी डी ए ई सी है। अच्छा ए ई सी है। ठीक है, ए ई और ए ई सी, और और ठीक है, थर्ड है ठीक है, बी ए ई, बी ए ई। ठीक है, बी ए ई सी। ठीक है, थैंक यू। लेट मी ड्रॉ इट हियर। ओके, सो आपका कोई नल है, पहला हमारे पास था बी, इसकी काउंट 1 थी, फिर डी है, इसका भी काउंट 1 है, फिर ए है, इसका भी काउंट 1 है, और फिर ई है, इसका भी काउंट 1 है। ये पहली ट्रांजैक्शन हमने ऐड कर दी। ठीक है, अब अच्छा, दूसरी ट्रांजैक्शन आपके पास आएगी, वो थी बी डी ए ई सी, राइट। इसका मतलब है कि उसमें जो पाथ बनेगा रूट से, रूट नल है, बी डी ए ई कॉमन है। ठीक है, तो rather than starting a new path, I will just use that path and increment the count by 1। ठीक है, सो मैं एक्चुअली Okay. मुझे अब नजर नहीं आएगा मैंने क्या लिखा था, आई एम गोइंग टू रीड्रॉ इट। ठीक है, ठीक है, सो अब हमारे पास पहली ट्रांजैक्शन के बाद वो था, दूसरी ट्रांजैक्शन मैंने जब की तो ये बी, इसका काउंट 2 हो गया, डी, इसका काउंट 2 हो गया, ई, इसका काउंट 2 हो गया, ए, इसका काउंट 2 हो गया, और फिर सी, इसका काउंट 1। ठीक है, सो यू नोटिस दैट बी जो 2 दफा आया था, या बी डी ए ई जो 2 दफा आया था, वो पूरा हमने रिपीट नहीं किया स्टोरेज में, वही काउंटर बढ़ा दिया हमने। और लेट्स से तीसरी ट्रांजैक्शन लेट्स से थी हमारे पास बी सिर्फ थी, या बी ए सी थी, आई डोंट नो व्हाट इट इज। तो वो इसी में ही हम बी पहले आ रहा है, बी का इंक्रीमेंट 3 कर देंगे, ए पहले आ रहा है, उसका इंक्रीमेंट नहीं, पहले बी डी, बी डी आ रहा है, तो बी के बाद हम एक ब्रांच निकालेंगे। सो लेट मी ड्रॉ दैट। सो लेट्स से ये हो जाएगा आपके पास बी, ये 3 हो जाएगा, पहले हमारे पास था डी, ये 2 था, और यहाँ से निकल के एक ए 1 आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरह आपने सारी ट्रांजैक्शन, जी ये रूट से ट्रांजैक्शन निकलेगी ए की?
रूट से उस वक्त निकलेगी जब कोई किसी के साथ मैच नहीं हो रहा, कोई नई ब्रांच निकलेगी। लेट्स से आपके नहीं, पास मैं ये पूछ रहा था कि आपने जो ड्रॉ किया वो आपने रूट से कि बी से निकाली है, वो नजर मुझे नहीं सही आ रहा। रूट बी से नहीं, वो ए बी बी के से आगे है। बी से आगे निकली है। ओके। सो फॉर एग्जांपल लेट्स से मेरा पहले ट्री था बी ए और ई, लेट्स से, और लेट्स से मेरे पास नई ट्रांजैक्शन वो डी से शुरू हो रही है, तो वो फिर रूट से ऊपर से शुरू होगी, सॉरी डी। ठीक है, कोई पाथ यूज हो सकता है वो हम यूज कर लेंगे, कोई नहीं हो सकता वो हम नया शुरू कर लेंगे रूट से ही। ठीक है, तो ये एक्चुअली मेरे ख्याल से ऊपर चले गया, पता नहीं आपको नजर आ रहा है कि नहीं आ रहा। सो लेट्स से, तो ये बी है और कोई लेट्स से कोई नया डी से शुरू होता है, तो डी का नया पाथ यहाँ से शुरू होगा। ठीक है, so in this ठीक है सर। way you actually insert all the transactions in the database into the tree, which is a frequent pattern tree. इस ट्री की तो ये ट्री आपको नजर आ रहा है इधर? यस सर। यस सर। तो ये अब कंप्लीट ट्री है उस ऊपर ट्रांजैक्शनल डेटाबेस का। बट इन दिस ट्री दो चीजें हो रही हैं, एक एक्चुअली एक ही चीज हो रही है, कंप्रेशन हो रही है। और वो कंप्रेशन किस तरह हो रही है कि any information that is not relevant for frequent item set mining has been removed. जो इनफ्रीक्वेंट वन आइटम्स थे वो रिमूव हो गए, डायरेक्टली रिमूव हो गए, और कुछ जो आइटम्स रिपीट हो रहे हैं वो हम ऊपर ट्री के करीब ऊपर ले आए हैं और उनकी रेपिटेशन हमने रिड्यूस कर दी। ठीक है, सो होपफुली दिस स्ट्रक्चर कैन फिट इन मेमोरी। If this structure can fit in memory, all future processing can be done on this structure. Okay. ठीक है, तो अब ये हमारे पास वन आइटम सेट्स हमने सारे ढूंढ लिए। अब रिकर्शन होगी। अब रिकर्शन हमने जो एफ लिस्ट थी विच वॉज द फ्रीक्वेंसी डिसेंडिंग ऑर्डर, हमने उसमें जो लीस्ट फ्रीक्वेंट आइटम था उससे शुरू होकर ऊपर आना है। मतलब हमने डेप्थ फर्स्ट सर्च करनी है स्टार्टिंग फ्रॉम द लीस्ट फ्रीक्वेंट आइटम। तो उस लिस्ट में सबसे जो नीचे था वो सी था और उसकी काउंट 3 थी। सो वी आर नॉट गोइंग टू ड्रॉ द कंडीशनल पैटर्न बेस फॉर सी which has a count of 3. Actually, condition pattern base is simply the projected database, just that के C हम उसमें नहीं लिखेंगे। ठीक है, तो C हम नहीं लिखेंगे। अब ये वाला जो प्रोजेक्टेड डेटाबेस है ये भी हम ऊपर ट्री से ही निकाल लेंगे। हम उस ट्री में देखेंगे कहाँ CC आ रहा है और उससे वापस ट्रैवर्स करेंगे। ठीक है, अब so if you look at the tree above, so एक आपका पास जो C आ रहा है with a count of 1 is BAEC. Just a second. BDAE and then C. Of course C हम नहीं लिखेंगे, बट इसकी काउंट कितनी होगी? C एक दफा आ रहा है तो इसका मतलब है ये काउंट 1 होगा। ठीक है, सो ये आपके पास ऑर्डर्ड ट्रांजैक्शन है विद अ काउंट ऑफ 1। इसके अलावा हमारे पास एक ब्रांच आ रही थी BC, सॉरी एक सेकेंड, जस्ट ए सेकेंड।
हाँ सी है ना, ठीक है। सो एक ब्रांच हमारे पास आ रही, बी से सी भी जा रहे हैं हम, ठीक है ना, तो उसका जो हम कंडीशनल पैटर्न बेस देखेंगे वो बी होगा, और सी की उसमें कितनी दफा आ रहा है, तो एक दफा आ रहा है, उसका मतलब ये ट्रांजैक्शन भी एक दफा आ रही है, एंड सिमिलरली फॉर द, ठीक है, एंड देन वी हैव डी ए ई सी। सो बी ए ई सी भी था हमारे पास, और ये एक हमारे पास एक और ब्रांच आ गई। अब ये हमारे पास सारी प्रोजेक्टेड ट्रांजैक्शंस आ गई। ऑफ कोर्स वी डिड नॉट राइट द सी देयर, वी जस्ट राइटेड नोटेड डाउन द काउंट। अब ये भी एक डेटाबेस है, जिस तरह ओरिजिनल पहले एक डेटाबेस था, ये भी एक डेटाबेस है। इसको भी हम ट्री में डाल देंगे। ऑफ कोर्स इसका साइज छोटा होगा बिकॉज वी हैव डन सम फिल्टरिंग, बट स्टिल रिकर्शन इसी तरह चलती है। इसको भी हम डेटाबेस में डालेंगे, एक ट्री में डालेंगे। वो ये अब इसकी ऑफ कोर्स एफ लिस्ट बनेगी, एफ लिस्ट अपनी बनेगी इसकी। इसमें बी कितनी दफा आ रहा है, 3 दफा, ठीक है। सो बी 3 दफा आ रहा है, और ए आपके पास 2 दफा आ रहा है, ई भी शायद 2 दफा आ रहा है, एंड दैट्स इट। मतलब कोई और फ्रीक्वेंट आइटम नहीं है, सिर्फ बी फ्रीक्वेंट है। तो बाकी हमने जो सिंगल आइटम्स है दैट वाज नॉट फ्रीक्वेंट, वो रिमूव हो गए। अब इसको हमने फिर ट्री में डालना है। सो इसमें सिंपली हर एक ट्रांजैक्शन का सिर्फ बी रह गया, बाकी सारे रिमूव हो गए। तो बी 3 दफा आ गया, तो ये सिंपल एक ट्री बन गया विद बी 3। सो इन अदर वर्ड्स, इस इस ट्रांजैक्शनल प्रोजेक्टेड ट्रांजैक्शनल डेटा में सिर्फ बी फ्रीक्वेंट है। तो इसका मतलब है कि बेस्ड ऑन दिस हमारे पास जो फ्रीक्वेंट पैटर्न बनेगा, ग्रोथ से बनेगा, वो बी सी 3 बनेगा। सी के आगे हम बी भी कॉन्कैटिनेट कर देंगे, उसका काउंट 3 होगा, ठीक है। अच्छा, तो आई विल जस्ट स्टॉप लिटिल बिट। तो यहाँ आप इतने तक कुछ समझ आ रही है क्या? इट्स गोइंग ओवर द हेड। आ रही है सर समझ। अच्छा, ठीक है, चलें, गुड। मतलब नीचे जैसे फॉर एग्जांपल जो मैंने ट्री बनाया है, इसके लिए मैंने वो डायरेक्टली लिख दिया, वो ग्राफिकल स्ट्रक्चर नहीं बनाया, बट वो भी ट्री ही है, नल से बाद बी है, उसका काउंट 3 है, ठीक है। सो इन दिस वे यू डू रिकर्शन। अब ये जो ट्री बना है इधर, इट जस्ट हैव वन आइटम, और इसके बाद फर्दर रिकर्शन हो नहीं सकती। सो इन अदर वर्ड, ये यहाँ से आप वापस ऊपर तक आ गए। लेट्स से ये लंबा होता तो यहाँ इस पे भी रिकर्शन चलती, और मतलब इस पे और डीपर जाते आप, इस पैटर्न को ग्रो करते, सी का पैटर्न को ग्रो करते। बट ये आप यहाँ आपका खत्म हो गया। सो यू गो बैक टू द टॉप लेवल, और फिर आप नेक्स्ट एफ लिस्ट में जो टॉप लेवल के एफ लिस्ट आइटम को देखा, विच इज ई आई थिंक, ठीक है ना, वो ऊपर चले गए, उसका पैटर्न जो था वो, उसकी काउंट 3 था। अब इसका आपने कंडीशनल पैटर्न बेस निकाला, ये भी ओरिजिनल ट्री से निकलेगा। सारे पॉइंट्स देखें जहाँ ई पे आ रहे हैं, और उससे बैक ट्रैक करें, वो आपके पास उसकी ट्रांजैक्शन आ जाएगी इन फ्रीक्वेंसी डिसेंडिंग ऑर्डर। सो इसमें अब हमारे पास आया बी डी ए 2 है, बी ए 1 है, बी डी ए 2 है, बी ए 1 है, और डी ए 1 है, ठीक है, जिसके आगे ई आ रहा है। सो डी ए ई हमारे पास ट्रांजैक्शन था, बी डी ए ई था, वो 2 दफा आ रहा है, और बी ए ई 1 दफा आ रहा है। अब ये हमारे पास नई प्रोजेक्टेड डेटाबेस है, इसका हम उसी तरह एफ लिस्ट बनाएंगे। इसमें ए, अब इसमें हाईएस्ट काउंट क्या है, 4 है, सी है, बी है, सॉरी 3 है, एंड देन डी है, ये भी 3 है, ठीक है ना। तो ए, बी और डी। अब इसका फिर एफ ट्री बनेगा। अब ये ट्री ऑफ कोर्स इट हैज 2 पाथ्स, एक पाथ नहीं है, ठीक है।
तो आपके पास ऑफ कोर्स ये आपने एंट्री फ्रीक्वेंसी डिसेंडिंग ऑर्डर पे करना है। अब ये फ्रीक्वेंसी डिसेंडिंग ऑर्डर क्या है, ए ऊपर आ रहा है, ए बी एंड डी ऊपर जो ट्रांजैक्शन है इस ऑर्डर में आपने इनपुट करनी है। तो D2 है, B3, सो A4 बिकॉज एक ए बी उधर भी आ रहा है, फिर ए क्या था, सी था या बी था, B3 था और फिर ये D था 2। क्या अब इस पे आप रिकर्शन होगी, इसकी आप एफ लिस्ट बनी हुई है, इस एफ लिस्ट पे फिर आप वापस जाएंगे। इसकी एफ लिस्ट में लास्ट आइटम क्या था, ऊपर था A B D, सो D पे हम रिकर्स करेंगे। ठीक है, अब हमने D यूज किया, ठीक है, तो वो ई था हमारे पास ऊपर से, डी हमारे पास यहाँ आया और डी की काउंट 3 थी। इसका मतलब है कि डी ई का काउंट भी 3 होगा, इट कैन नॉट बी 4, ऑल्दो ई 4 था, बट उस 4 में सिर्फ डी 3 दफा इसके साथ आ रहा है। इसका मतलब है कि डी ई हमेशा 3 होगा, 3 से ज्यादा नहीं हो सकता। अब ये रिकर्शन उस पर उस तरह चलेगी, एंड देन यहाँ से फिर एक एफ पी ट्री बनेगा, एफ लिस्ट बनेगी, पैटर्न गिरेंगे अंटिल देयर इज नो फर्दर ग्रोथ। ठीक है, नाउ वी हैव गॉन टू AE, ये ऑफ कोर्स नल है, ठीक है, कुछ नहीं आया तो वी हैव फिनिश द रिकर्शन। तो ये सारे फ्रीक्वेंट पैटर्न्स इस डेप्थ के से निकले। पहले C का डेप्थ था जिसमें सिर्फ हमारे पास B और C आया था, अब हमने E का डेप्थ लिया तो इसमें ये सारे निकले। Okay. So any questions? सो एफपी ट्री जो ये ग्रोथ एल्गोरिथम है, एक दफ़ा आप खुद ही भी देखेंगे तो आपको समझ आ जाएगा। इट्स फेयरली स्ट्रेट फॉरवर्ड, बट ऑफ कोर्स इट डज हैव रिकर्शन और repetition of stuff, तो वो थोड़ा सा confusing हो जाता है in one sitting. So if you look at it on your own time at home, एक ये example है, book में भी example दी हुई है, you will find examples on the web as well. So I think you will be able to understand much easily. तो just to recap, क्या होता है, you scan the database once and find all frequent one item sets. This is the same as in a priori. But after you have found all the frequent one item sets, you order those one item sets in frequency descending order, which we call the F list or frequency list. Okay? Once you have done this, we do a second scan of the database. We read the database transaction by transaction. Each transaction, we order it according to the F list. Okay? And we insert it into the FP tree. This step is only meant for compression. If you don't want to do this and you want to follow the projected database approach, वो भी आप कर सकते हैं. The tree is only for compression. ठीक है? So जब इस tree में आप सारे transactions डाल देंगे, the original transactional database in whatever format that you have, you don't need it, you can discard it. ठीक है? So now all the operations would be done on the tree. So after this, you start partitioning this database, which is in the form of a tree now, with the item of the least count. मतलब जो F list का जो सबसे last item था उसको use करके partition करेंगे. So it's a projected database, but here we call it the conditional pattern base. Base का मतलब है prefix.
फ्रीक्वेंसी ऑर्डर में प्रीफिक्स है। हमने सी लिया तो उस ट्री में से जितने भी उसके ट्रांजैक्शंस हमने फ्रीक्वेंसी ऑर्डर में डाले हुए थे वो हमको प्रीफिक्स मिल जाएंगे, ठीक है। सो दैट्स आल्सो ए प्रोजेक्टेड डेटाबेस। अब उस डेटाबेस को फिर आप एफपी ट्री में डाल लें फॉर कंप्रेशन पर्पसेस, वही एफ लिस्ट बनेगी और एफपी ट्री में जाएगी। ये वाली एफ लिस्ट बाय द वे सेकंड या कोई भी और स्टेप में इट माइट बी डिफरेंट फ्रॉम द फर्स्ट वन, ठीक है। सो उसके बाद फिर ऑफ कोर्स वही सारा प्रोसेस रिपीट होता है और द काउंट ऑफ एन आइटम दैट यू फाउंड वुड बी, सो जो भी आपके पास आइटम बन रहा है, एक लेट्स से ई प्रोजेक्शन आपने की है और फिर आपने ए की प्रोजेक्शन की है, ई का काउंट लेट्स से 4 है और ए का उसमें 3 है, तो ई ए का काउंट 3 होगा, इट वुड बी 4, ठीक है। जो मैंने प्रोजेक्टेड डेटाबेस में आपको बताया था इट वुड बी 3 बिकॉज सिर्फ एक दफा ई एक्स्ट्रा आ रहा है और ए ई दोनों इकट्ठा 3 दफा आ रहा है, ठीक है। So इस तरह you grow the tree until you cannot grow the tree any further, then you go back to the previous F list, उसका next item उठाएं, you go grow it, then go back to the previous until you go back to the first, और first में भी सारे अपने कर लिए, then you're done, ठीक है। Okay, so are there any questions? So this algorithm was actually proposed by Han, जो आपका author है, one of the textbooks that I mentioned. So this was proposed by Han. Han, by the way, is at UIUC, University of Illinois at Urbana, and it was proposed sometimes in 2001. So this has been a quite, I would say, influential algorithm. Of course, a priori was also influential, but this was influential in the sense that it provided significant improvement in performance over the a priori algorithm for many practical applications. Okay. And nowadays, for most practical applications, we do use FP growth or its variant in practice. Okay. There are a few things to be discussed here in this algorithm. A few additional things. Can I get some of the finer details? तो आई एम काइंड ऑफ डिबेटिंग वेदर मैं आज करूं, बिकॉज एक दफ़ा आप इसको स्ट्रक्चर को समझ लें तो मे बी नेक्स्ट टाइम वो थोड़ा सा हम डिस्कस कर लेंगे, थोड़ा सा ही रह गया। बट आज मैं बताऊंगा तो मे बी इट विल बी काइंड ऑफ एन ओवरलोड। ये चीज़ पहले आपको समझ नहीं आ रही तो फिर वो समझ नहीं आएगी। ओके, सो लेट मी गिव यू ट्राई टू गिव एन एग्जांपल, ठीक है। सो अनदर एग्जांपल ऑफ कोर्स, सो लेट्स से मेरे पास एक प्रोजेक्टेड डेटाबेस है। So projected database for A5, let's say, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि जो मेरा ओरिजिनल डेटाबेस है उसमें A एटलीस्ट 5 ट्रांजैक्शन में आ रही है, ठीक है। तो जो प्रोजेक्टेड डेटाबेस होगा उसमें मैक्सिमम ट्रांजैक्शंस कितनी होंगी? So of course, if you are starting this, let's say A is the least frequent item, single item in my F list, then for sure ये ट्रांजैक्शन इसमें भी 5 ही होंगे, बिकॉज हर ट्रांजैक्शन में ए तो आ रहा होगा, उसके साथ कुछ और आ रहा होगा। लेट्स से ए बी है एक जगह, ए सी है, लेट्स से ए बी सी है, ए ई है फॉर एग्जांपल, ए बी सी लेट्स से फिर आ रहा है, ठीक है। ये कितने हो गए? 4 हो गए। और लेट्स से फिर ए सिर्फ सिंगल आ रहा है,
ठीक है। सो ये हमारे पास 5 ट्रांजैक्शंस इसके प्रोजेक्टेड डेटाबेस की हैं। ठीक है। इसका जो कंडीशनल पैटर्न बेस है वो क्या होगा? कंडीशनल पैटर्न बेस में हम ए नहीं लिखते, जो जिसको प्रोजेक्ट किया हुआ वो नहीं लिखते। ठीक है। एंड ऑफ कोर्स इसमें मैंने एफ लिस्ट नहीं बनाई। एफ लिस्ट तो ए है, ए बी सी है, ए ई आ रहा है। ठीक है, ए बी सी है एंड ए। ठीक है, तो एफ लिस्ट बना लेते हैं। ए ऑफ कोर्स 5 दफ़ा है, बी कितनी दफ़ा आ रहा है? ए बी सी है मेरे पास 3 3 दफ़ा, times 3 टाइम्स आ रहा है। ठीक है जी ना। सी कितनी दफ़ा आ रहा है? 2 टाइम्स। 2 times ठीक है, और ई E 1 time ई 1 टाइम। और इसके अलावा कोई और है A मैप? हाँ, no यही नहीं है है ना मैप पास। जी और लेट्स से मेरी मिनिमम सपोर्ट काउंट इस लेट्स से 3 है। ठीक है, तो एफ लिस्ट मेरी क्या होगी? A और B ठीक है ना, तो ए और बी होगी। एंड ऑफ कोर्स उसका ऑर्डर लेट्स से एफ लिस्ट हमने बनानी है तो वो ए 5 होगा और फिर बी 3 होगा। अब जो ऊपर हमने ऑफ कोर्स बाकी फिल्टर हो गए, वो हमारे पास नहीं आएंगे। अब उसका कंडीशनल पैटर्न बेस मैंने लेट्स से बनाना है फॉर ए इज इक्वल टू 5। उसमें हर एक ट्रांजैक्शन आएगी, बट इन दिस एफ लिस्ट वेयर ए इज फर्स्ट एंड बी इज नेक्स्ट। सो मेरे पास ए बी आ रहा है एक दफ़ा, एक्चुअली ए बी 2 दफ़ा आ रहा है। ठीक है, और फिर मेरे पास एक दफ़ा ए ई आ रहा है, तो उसका मतलब ए अलहदा एक दफ़ा आ रहा है। ठीक है, सॉरी ए अलहदा कितनी दफ़ा आ रहा है? एक 2 दफ़ा तो उसके साथ आ गया। और ये सो ए तो लिखना ही नहीं हमने, ए तो लिखना ही नहीं, सॉरी। A हम्म एक सेकंड। तो ठीक B है, बी 3 दफा आ रहा है वैसे बी 3 दफ़ा है। ठीक है, ठीक है, तो बी हमारे पास 3 दफ़ा आया है। इसके बाद हमारे पास ए तो ऑफकोर्स लिखना ही नहीं हमने। ठीक है, तो जब आप इसको आप एंटर करेंगे, जो भी आपका एफ पी ट्री बनेगा वो सिंपल बी 3 बन जाएगा। कोई एक ही पाथ होगा, उसमें एक ही आइटम होगा। ठीक है, और जब एक ही आइटम और एक ही पाथ होगा तो वी कैन जनरेट ऑल द फ्रीक्वेंट आइटम सेट्स फ्रॉम दैट। यू डोंट नीड टू डू रिकर्शन। अब इस केस में फॉर एग्जांपल हमारे पास ये सॉरी A5 का था, ये फ्रीक्वेंट कॉम्पैक्ट फ्रीक्वेंट पैटर्न बेस, कंडीशनल पैटर्न बेस। और इसमें से हमको पता चला कि B3 है, तो इसका मतलब है कि हमारे पास ए बी एक जनरेट हो गया विद काउंट 3। एंड ऑफ कोर्स टॉप लेवल पे A इज इक्वल टू 5 पहले ही हुआ था। ठीक है, तो ये इस तरह चलता है। सो यू पार्टीशन द डेटाबेस एंड देन grow the frequent pattern from the frequent items in that partition, and you do it recursively. ठीक है, तो are there any other questions? ठीक है, तो let me move to the slides. Oh, sorry. Yeah, sorry. ओहो, ये आगे चले गया। अच्छा, 33 शायद था।
So let's just look at some characteristics and of the algorithm. So the algorithm is complete and exact, meaning that there is no approximation. And whenever we do the compression in the form of the tree, we have preserved all the information regarding frequent pattern mining. There is no loss of information with regards to frequent pattern mining. Of course, there is loss of information. Single items, for example, drop ho gaye, but those are not required for frequent pattern mining. Okay? Okay, and then since it is frequency descending order, you never break a long pattern. Long pattern का मतलब number of different multiple items हैं. Since we are also starting from the least frequent single item, तो आपके पास हमेशा जो least frequent single item से वो grow होगा, उससे ऊपर बढ़ेंगे आपका. ठीक है? And compactness, of course, compression है, तो irrelevant information is gone. ठीक है? So if there are items that are occurring very frequently, they are more likely to be shared. They are going to be towards the root of the tree, and they are going to be repeated with only the counter being increased. Okay. Of course, there is some additional storage element, let's say links हैं आपके पास और वो चीजें हैं, but it can never be larger than the original transactional database. So for some practical transactional databases, it has been shown that you can achieve magnitudes of orders of data compression using this FP tree structure for frequent pattern mining. ठीक है, तो 10 times or 100 times data reduction हो सकती है compression की perspective से. So we have already actually looked at this. Let's move forward. So we are not going to discuss this, although इसमें key ideas तो हमको पता ही है. We have already looked at this. Okay, so this slide basically compares the performance of a priori with FP growth. So on the x-axis is the minimum support threshold, और आपके y-axis पे computational time है I think, और number of frequent patterns है, I'm not too sure क्या है. Y-axis पे क्या है? Run time, sir. हाँ, run time है, computational time है. So you will notice that जो a priori का algorithm का run time है, it kind of balloons much quicker as the minimum support threshold decreases. और ये हमने last time discuss किया था कि minimum support threshold जब कम होती है, the number of frequent item sets that you find becomes much larger. On the other hand, the FP growth is much more robust. Uski performance curve is generally lesser on the lower side as compared to a priori, and it also balloons much later in the support category. So ज़्यादा कम और support करेंगे तो फिर एकदम उसकी performance boost blow up होती है. ठीक है? So this is a similar comparison, but with the tree projection algorithm, which we did not study in detail, but exactly वही technique है, very similar to FP growth है. You can say the tree projection was a precursor to the FP growth algorithm. मैंने आपको जो शुरू में बताया था वो database projected था, ठीक है ना? So उसका वो समझ लें, that is a precursor to the tree projection, और the FP growth is the following both of these. First was database projection, second was tree projection, the third was FP growth.
So another algorithmic property of this technique is it's divide and conquer. We said that it is depth first, but it's also divide and conquer, meaning that you partition and then sub-partition and then sub-partition and find all the patterns in that. And this decomposition is done based on frequency, so which is also an efficient way of doing it. So most importantly, you don't have any candidate generation, you don't have any candidate test. So basically tree से ही आपके पास counts भी आ रहे हैं और pattern grow भी हो रहा है. ठीक है, so you have data compression. So if the FP tree structure fits in memory, you just need 2 scans. Pehla scan for one item set, the second scan to construct the tree. But if it doesn't fit in memory, which is the case for many practical data sets, तो उसके of course आपको external transactions करनी पड़ेंगी. But there are some techniques to optimize that as well, but those are mostly in the research literature. So we would not discuss extensions to the FP growth technique as we discussed for the a priori. Iski bhi, by the way, extensions आई हुई हैं in different contexts, in different settings, but we won't discuss those in detail in this class. So now let me move on to another idea, which is a third main idea, which is actually quite simple and we won't go into much detail there. So we have studied a priori, we have studied FP growth. The third main category, and it's basically an idea that we are going to discuss, we are not going to discuss specific algorithms in detail here. It's basically called vertical data format based mining. Okay? So what is the idea here? Of course, इसका जो एक जो algorithm का जो नाम है वो, by the way, as I said before, बड़े fancy नाम शुरू में रखे गए data mining में, तो इसका नाम ECLAT है. इसका कोई एक्रोनिम का मतलब कोई बनता है, आई डोंट इवन रिमेंबर राइट नाउ, सो कुछ है इसका मतलब, यू कैन लुक इट अप. ठीक है, सो वर्टिकल डेटा फॉर्मेट. तो इसमें आइडिया क्या है? सो वी हैड स्टडीड ट्रांजैक्शनल डेटाबेसेस, और एक मैं एग्जांपल ले लेता हूँ. लेट्स से ए बी सी एक ट्रांजैक्शन है, ए बी दूसरी है, और लेट्स से तीसरी ए सी है. ठीक है, so we have 3 transactions in a transactional database. So this format is called the regular format, or you can call it the horizontal format as well. ठीक है, the vertical format में ये होता है कि we basically have items, and they could be item sets, but as I said, I'm going to just discuss the idea. They are items as rows and columns are transactions. ठीक है, so ये हमारे पास पहली ट्रांजैक्शन है, ये हमारे पास दूसरी है, और ये हमारे पास तीसरी है. ठीक है, तो इसका जो वर्टिकल डेटा फॉर्मेट है वो ये है. ठीक है, सो वी राइट, इसमें आइटम्स कितने थे हमारे पास? ए था. ठीक है, अब ए कौन सी ट्रांजैक्शंस में आ रहा है? 1, 2 and 3 किस में आ रहा है? सब में आ रहा है. सॉरी में आ रहा है, सब में आ रहा है. तो अब ये 1, 2, 3, हमने अब आइटम लिखा, उसके आगे लिखा कि किन ट्रांजैक्शंस में वो आइटम आ रहा है. सिमिलरली बी, तो बी हमारे पास किस में आ रहा है? 1 में आ रहा है, 1 और 2, 1 में 2 आया, और फिर सी है हमारे पास, ये मेरे पास सिर्फ 1 और 3 1 और 3 में आ रहा है. ठीक है, सो दिस फॉर्मेट इज द वर्टिकल डेटा फॉर्मेट.
ठीक है. Of course, I have made this vertical data format based on single items. Sets पे भी बना सकते हैं, बस जो algorithm actually starts with the single and then grows it up. So I'm not going to discuss the whole full algorithm. I'm just going to discuss the idea. ठीक है. अब इस डेटा सेट पे वो आइटम सेट माइनिंग करता है. किस तरह? एक तो आप राइट अवे देख सकते हैं कि लेट्स से ए की जब हम रो देखते हैं, उसका सेट ऑफ ट्रांजैक्शन, the count is simply the count of times that A occurs or the size of. So for example, 1, 2, 3, this is the set of transactions. इसका simply मैं count ले लूं. ठीक है, इसका count क्या होगा? Is equal to 3, and this tells us that A is equal to 3. ठीक है ना? So in other words, we did not, of course, once we created the vertical format, उसके बाद आपको कोई database scan करने की जरूरत नहीं पड़ी. Simply you counted the number of items in the row for A, number of transactions in the row for A. ठीक है. Similarly, let's say B मेरे पास, B की मैं बात करता हूँ तो B मेरे पास 1 और 2 में आ रहा है. ठीक है. A और B is equal to 2. This means that B is equal to 2, right? सही हो गया. अब given this information, can you quickly compute the count for AB? वो किस तरह निकलेगा? इंटरसेक्शन ले लेंगे. Exactly. So you take the intersection of the transaction set. By the way, ये जो set ऊपर बनाया है, this is called a transaction set. जैसे उसको हम item set कहते थे. So this is a transaction set. So transaction set. ठीक है. So you take the intersection of 1, 2, 3, intersect 1 and 2, and then of course the union, the absolute of all this. So this is equal to 2, and this means that AB is equal to 2. ठीक है. तो ये एक्चुअली मेन आइडिया है. ऑफ कोर्स इसमें बाकी आइडियाज भी हैं. वो ए प्रायोरी प्रिंसिपल भी कुछ एल्गोरिथम यूज करते हैं, कुछ फ्रीक्वेंसी डिसेंडिंग ऑर्डर भी यूज करते हैं. बट मेन आइडिया ये है कि यू कैन यूज सेट ऑपरेशंस टू डू काउंटिंग once you have converted your database into the vertical data format. ठीक है. So एक दफा दोबारा रिपीट करना वर्टिकल फॉर्मेट वाला. अच्छा. So vertical format में जो मेन चीज ये है कि we convert the database, the original transactional database, in which for each transactions we have a list of items, to another transactional database in which each transaction is based on an item set, and the list is the list of transactions in which that item set occurs. ठीक है. तो ये एग्जाम्पल में, तो इस एग्जाम्पल में मैंने ट्रांजैक्शनल वर्टिकल फॉर्मेट मैंने सिंगल आइटम्स पे बनाया है. तो पहला रो मेरा ए का है, और उसमें जो आइटम्स हैं वो ट्रांजैक्शन नंबर्स इन विच ए अकर्स. सो उसमें जो आइटम्स हैं वो 1, 2 और 3 हैं. दीज आर द नंबर्स इन विच ए अकर्स. Similarly for B, we note down the number ID of the transaction in which item set B occurs, which is 1 and 2, and similarly for C, which is 1 and 3. ठीक है ना. So ये एक one time process आपने करना है. Once you have done this, you can do most of the counting and further processing, like growing the item set using set operations.
So जैसे मैंने ये कहा कि let's say if you want to find the count of times that A occurs, इस vertical format database में simply जो set है 1 2 3 का उसका आप size ले लें, absolute ले लें, तो उसमें 3 items है, इसका मतलब A occurs 3 times. Similarly B का करेंगे तो B occurs 3 times. So similarly C का करें B occurs 2 times, 1 and 2. C का करेंगे तो also occurs twice, 1 and 3. And if you want to grow the item, you can use intersections of these sets, which are transaction sets. और जो set आएगा उसका count ले लें तो वो उसका count बन जाएगा आपके पास. ठीक है? Yes, sir. ठीक है? Is this clear? Yes, sir. तो मेरे ख्याल से I am going to stop here. मेरा भी गला खुश्क हो गया आज. तो इसमें अब एक रिकमेंडेशन, ऑफ कोर्स आपका क्विज भी है मंडे को, बट रिकमेंडेशन ये है कि एटलीस्ट फॉर द एपिक ग्रोथ एल्गोरिथम आपने एक दफ़ा ज़रूर खुद ही कोई छोटी सी एग्जांपल करनी है. ठीक है? बुक में भी कोई एग्जांपल मिल जाएगी आपको, वेब पे भी मिल जाएगी, कोई टेक्स्ट बुक उठा लें उसमें भी मिल जाएगी, मेन टेक्स्ट बुक में भी है, दूसरे में भी है, वेब पे देख लें, या मैंने जो एग्जांपल दिखाई थी वो मैं अभी अपलोड कर देता हूँ आफ्टर क्लास, वो देख लें क्लोजली so that you understand it, and then of course with that also go over the slides, so then you will understand exactly how it works. And then of course vertical data format में हमने detailed algorithm नहीं देखा, ECLAT. We just looked at the main idea, which was converting the horizontal database into a vertical format and then processing information using that data format. ठीक है? Okay, any ठीक है, sir. questions? Any questions? No, sir. No, sir. अच्छा, ठीक है, तो ये हमारा 5th वीक है. आई एम प्लानिंग दैट आपका जो मिड है एग्जाम, इट विल बी, एग्जैक्ट डेट मैंने अभी नहीं देखी, बट जो 8th वीक का जो वीकेंड बनेगा, सैटरडे बनेगा, उस पर मैं रखने का सोच रहा हूँ. ठीक है? सो 8th वीक का जो वीकेंड होगा सैटरडे, योर एग्जाम वुड बी scheduled ड्यूरिंग दैट डे, एंड द कंटेंट फॉर द मिड वुड ऑलवेज बी टिल द लास्ट लेक्चर. उसमें एक लेक्चर मैं मिस कर दूंगा बिफोर द एग्जाम, रिवीजन हो जाएगी, या टोटली मिस कर दूंगा डिपेंडिंग ऑन व्हाट यू गाइस फील. एंड देन जो उसके पिछले लेक्चर तक जो कंटेंट हुआ दैट वुड कम इन द एग्जाम. ठीक है? तो आप समझ लें कि 15 लेक्चर्स मिड में आएंगे. ठीक है? सबमिट ऑनलाइन ही है हमारा? हाँ, ऑनलाइन ही होगा. बेसिकली वो भी 100% भी कंफर्म नहीं है, बट द आइडिया वुड बी देयर वुड बी 2 पार्ट्स. वन पार्ट वुड बी somewhat similar to what you already do in quizzes, ठीक है, on LMS, and the second part would be pen and paper, and you have to send in the scan, or both parts would be one after the other. तो I would say कि 2 hours 2.5 hours में आपके दोनों चीजें खत्म हो जानी चाहिए. ओके, ठीक है? ठीक है, so I think that's